Hello everyone. So this is another set in our daily DILR series, and this set is from distribution और difficulty level की अगर मैं बात करूँ तो ये set medium level की difficulty में होगा, not very high but not easy as well. So somewhere near medium only. So let's not waste time and try to solve this set. देखते हैं क्या है इस set में. So it says IILK organized a 2-day Indian classical music event with 3 slots on each day. 4 artists, namely Subbu, Kumar, Shankar, and Krishnolay, and 3 bands, namely Delhi C, GTH, and Mitti, performed at the event. तो हमारे पास 4 आर्टिस्ट हैं और 3 बैंड हैं और 2 दिन का ये इवेंट है. So we have day 1. And we have day 2. तीन स्लॉट्स हैं. No artist performed. So what else is given? In each slot, an artist or a band or a combination of an artist and a band performed. तो इस स्टेटमेंट से सबसे पहले तो ये समझ लो कि या तो यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिस्ट होगा या सिर्फ एक बैंड होगा या फिर एक बैंड और एक आर्टिस्ट होगा. इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है that it is not possible to have 2 band or 2 artists or 2 band and a artist. So it can be either 1 band, 1 artist, or it can be a combination of 1 band and 1 artist. ठीक है? फिर देखते हैं. No artist performed alone in the last slot of a day and no band performed alone in the first slot. तो किसी भी बैंड ने अकेले यहाँ पे नहीं परफॉर्म किया, किसी भी आर्टिस्ट ने अकेले यहाँ पे नहीं परफॉर्म किया. Whenever Delhi C and Mitti performed, they did it in 2 successive slots with Delhi C performing before Mitti. So ये कुछ इस तरीके से है, Delhi C और फिर Mitti. इसी ऑर्डर में ये लोग परफॉर्म करेंगे. Second, the number of performances given by Shankar was less than that given by GTH, and the last performance of Shankar took place before the first performance of GTH. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि शंकर is less than GTH. That means मिनिमम अगर शंकर को 1 देते हैं तो GTH को 2 तो देना ही पड़ेगा. थर्ड है Subbu performed alone only once during the event and that was in the first slot on the second day. तो फर्स्ट स्लॉट सेकंड डे में सुब्बू ने अकेले परफॉर्म किया. ये स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3. The sum of the number of performances given by Mitti, Krishnolay and Kumar respectively wasn't a prime number. So Mitti plus Kumar is not a prime number. Okay? तो प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, and so on. या फिर 8 हो सकता है. You can see that the total number of slots are 6. तो ये 6 से आगे तो जा ही नहीं सकता. मान लेते हैं कि इन लोगों ने हर जगह पे परफॉर्म कर दिया या सब जगह ये आ गए. I mean, can go more than 6 because सब अलग अलग है. तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. We don't have to worry about that. बाद में देखेंगे कि इसको कैसे फिल करना है. फिफ्थ क्या है? The total number of performances given by the artists was equal to the total number of performances given by the bands. Each artist performed at least once during the event. तो हमारे पास 4 आर्टिस्ट हैं, तो at least 4 performances तो किया ही होगा आर्टिस्ट ने. So that gives us बैंड ने at least 4 तो किया ही होगा. अब ये 5 और 5 भी हो सकता है, ये 6 और 6 भी हो सकता है, 7 और 7 भी हो सकता है. Now you can see that there are 5 slots left. एक स्लॉट तो जा चुका है जो सुब्बू ने अकेले ले लिया और अब हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं. इन 5 स्लॉट्स में अगर हर स्लॉट में बैंड परफॉर्म करता है
तो भी बैंड 5 ही ले सकता है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 4-4 या फिर 5-5, यही दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हैं। 4-4 में एक सुब्बू ने ले लिया है और बाकी सब एक 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 ले लेंगे। 5 में किसी कोई एक आर्टिस्ट 2 बार परफॉर्म करेगा एंड बैंड भी 2 बार परफॉर्म करेंगे एंड सो ऑन। नाउ वी नो दैट GTH परफॉर्म एटलीस्ट वन मोर देन शंकर। तो अगर 4-4 है, ये वाला केस है, तो इसमें GTH 2 बार परफॉर्म करेगा एंड देन वी हैव दिल्ली एंड वी हैव मिट्टी, they can perform 1-1 each, so 2 + 1 3 + 1 4 हो गया। और यहाँ पे सारे आर्टिस्ट एक एक बार परफॉर्म करेंगे। अगर हम इसमें जाएं तो यहाँ पे हमारे पास GTH जो है वो 2 बार परफॉर्म कर सकता है या 3 बार परफॉर्म कर सकता है। Now we can see that Delhi, C and Mitti, whenever Delhi, C and Mitti performed, they did it in 2 successive slots. Point number 1. तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो इस वाले केस में GTH has to perform 3 times, DS will perform 1 and Mitti will perform once। तो अब अगर ये वाला केस है तो 3-1-1 हो जाएगा, ये वाला केस है तो 2-1-1 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अब हम कुछ और टूल्स को यूज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं। सो पहले वाले पॉइंट को तो हमने यूज कर लिया। सेकेंड पॉइंट, the number of performances given by Shankar was less than that given by GTH, and the last performance of Shankar took place before the first performance of GTH। ठीक है, यहां पे जो सेट में दिया हुआ है, no artist performed alone in the last slot and no band performed alone in the first slot। तो अगर DS और मिट्टी इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, then there has to be some person here and then the rest will be taken care by GTH। अब हम लोग इस वाले पॉइंट को अगर देखें, फोर्थ पॉइंट को, the sum of the number of performances given by Mitti, Krishnaloy and Kumar respectively wasn't a prime number। इसमें ये दोनों लोग आर्टिस्ट हैं and this is a band। मिट्टी के बारे में हमें पता है कि दोनों ही सिनेरियो में 1 ही मिलने वाला है, so this will be 1। Now the two cases that are possible here, that is 1-1 दे दें। अगर हम 4-4 वाले केस में जाएंगे तो इन दोनों के पास एक और एक आएगी परफॉर्मेंस, that will give us 3 which is a prime number। तो ये 1-1 नहीं पॉसिबल है, that means this is not possible, so this is the possibility that gives us that 1 out of them will be 2। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4 which is not a prime number। तो अब हमें पता चल गया कि ये वाला सिनेरियो है, that is GTH perform 3 times, DS and मिट्टी perform 1 time each। अब इसमें देखो DS और मिट्टी इसी ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे, so they can perform either in this slot, slot 1 and slot 2, या फिर slot 2 और slot 3। दूसरा केस क्या हो सकता है, DS and मिट्टी। ये 5 स्लॉट्स हैं और 5 बैंड ने परफॉर्म किया है, यानी कि हर स्लॉट में बैंड ने परफॉर्म किया। अगर DS और मिट्टी slot 2 और slot 3 में परफॉर्म करेंगे, then in that case GTH has to perform in slot 1, but point number 2 says कि शंकर की परफॉर्मेंस के बाद GTH की परफॉर्मेंस शुरू होती है। So GTH cannot perform in slot 1, that means this is not a possibility। तो ये हो गया हमारा DS मिट्टी, then it is GTH, GTH and GTH। तो हमारे सारे बैंड को तो हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद आर्टिस्ट। तो हमारे पास एक सुब्बू यहाँ पे आ चुका है। नाउ शंकर कैन कम हियर और हियर एंड द अदर 3 कैन कम एट व्हाटएवर प्लेस दे आर। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे जा सकते हैं, बिकॉज़ इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग फिल कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखें, if Mitti performed alone, then who performed with Delhi C? We already know that Shankar has to perform either in slot 1 or slot 2। अगर मिट्टी ने अकेले परफॉर्म किया है, then Shankar has to perform in slot 1 and then Delhi C के साथ कौन परफॉर्म करेगा, शंकर परफॉर्म करेगा। Question 2, which of the following statements cannot be true? Krishnaloy and GTH performed
in the third slot on the first day. तो दोनों लोगों ने थर्ड स्लॉट में परफॉर्म किया, which is perfectly fine. So cannot be true तो नहीं है. Cannot be true का मतलब है कि किसी भी सिनेरियो में ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो, तो हमें ये देखना है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, वी जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि ये कहीं पे ट्रू हो जाए. अगर हम कोई भी एक केस बना सकते हैं जिसमें ये ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये कैन नॉट बी ट्रू वाले में नहीं आएगा. दैट मींस दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज नॉट माय आंसर. सेकंड पॉइंट, शंकर एंड मिट्टी परफॉर्म्ड इन द सेकंड स्लॉट ऑन द फर्स्ट डे. तो मिट्टी है यहां पर, शंकर परफॉर्म कर सकता है. अगेन इट इज कैन नॉट बी ट्रू वाला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. Point number C, Kumar and GTS performed in the third slot on the second day. So Kumar and GTS third slot second day में perform कर सकते हैं, तो ये भी cannot be true statement नहीं है. That means answer is D, none of these. Third question, if Kumar performed on both the days, then he must have performed with which of the bands? तो कुमार ने दोनों दिन परफॉर्म किया, इसका मतलब कुमार ने दो वैल्यू कुमार के पास चली गई और इसने दोनों दिन परफॉर्म किया है. then he must have performed with which of the bands? तो अगर सेकेंड डे कुमार ने परफॉर्म किया है तो GTH के साथ तो उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा. that means answer is option number B. Fourth, it is known that Krishnaloy performed in the last slot on both the days. तो GTH के साथ दोनों दिन परफॉर्म किया. If a combination of an artist and a band performed in two of the slots on the second day, then who must have performed in the second slot on the first day? If a combination of an artist and a band performed in two of the slots on the second day, यानी कि दोनों ही स्लॉट में एक बैंड और एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया. Then who must have performed in the second slot on the first day? तो सेकेंड स्लॉट में फर्स्ट डे में किसने परफॉर्म किया? सो यहां पे तो कृष्णलॉय हो गया, यहां पे भी कृष्णलॉय हो गया, सुब्बू यहां पे हो चुका है. अब हमारे पास क्या बचता है, शंकर और कुमार. ये गिवन है कि यहां पे किसी ने परफॉर्म किया ही किया है, सो दैट हैज टू बी कुमार. नाउ शंकर कैन बी ईदर हियर और हियर, सो इट कैन बी शंकर एंड मिट्टी or it can be mitti. So if a combination of an artist and a, then who must have performed in the second slot on the first day? तो must में कौन है, मिट्टी तो होगी, वो परफॉर्म करेगा ही करेगा. शंकर कैन परफॉर्म और मे नॉट परफॉर्म, सो मस्ट में हम लोग किसको लगाएंगे, D. That is option number D, मिट्टी. So I hope you guys enjoyed the set. और थोड़ी बहुत यहाँ पे चीजों को ध्यान में देखना था. ये दो बेस बनाने थे, अगर इतना कर लिया होता तो ये सेट इजीली हो गया होता. आई होप कि आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया है, एंड अगर सॉल्व कर लिया है तो प्लीज पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. और अगर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वॉच द वीडियो सॉल्यूशन एंड लेट अस नो इफ यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेयर यू गॉट स्टक. और अगर कोई और सजेशन है आपका तो प्लीज पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. And please do subscribe to the channel because we are seeing that a lot of people are watching videos but are not subscribing. Please don't do that, guys. And share the word about Catapult classes. That's it, guys. Happy learning. Enjoy your day.